Hi, welcome back, guys. Today we will continue chapter 5 of Spectrum. I'll just give you a brief recap and आज हम बिल्कुल time waste नहीं करेंगे. We'll start. England, as we all know, is in Europe, attacked Ireland. Attack करने के बाद they attacked this region, that is West Indies region and America region, but the people of here revolted. This was known as the American Revolution, in which year you will comment down, and this ended with the Peace of Paris. Okay, then we saw ki this is west, this is east. Since they could not rule the west, they started looking towards the east. They found Africa, they found Asia, but what they liked most was India. What were the reasons for liking India? You will comment down. But they needed an excuse to come in India. This excuse was known as the noble excuse. They said that India is backwards and they will come and teach us like how the Romans had done earlier, and they came in India and started as traders. There are two concepts for this. One is that they actually were traders. They came, they saw politically weak rulers and power just fell into their hands. They never wanted it. And second is that no, it was planned, they were masked and they had come to rule India right from the starting, because पहले तो वो इन्हें rule करते ही थे and then they shifted their focus. So but obvious है that they should rule here, but there is no clarity as such. So we believe as a combination of both that they came to trade, and as a result power fell into their hands due to politically weak rulers who had no thinking amongst themselves. दिस इज़ अ रिकैप. अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो आपको समझ नहीं आएगा. प्लीज़ गो जस्ट अ सेकेंड. या प्लीज़ गो एंड वॉच माई फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब. इट्स फ्री एंड वी विल स्टडी फ्रॉम देयर नाउ. ओके, ओके गाइस, नाउ लेट अस स्टार्ट दैट जब इंग्लैंड इंडिया पे आ गए देन व्हाट हैपेंड. फर्स्ट वी हैव इन पिक्चर वन गाई known as Lord I will get a new page. Okay, तो इनमें से एक बंदा, his name is Richard Wellesley. Okay, you can write with me if you want. Running notes are always good. He came up with the idea of subsidiary alliance. Can anyone tell me what is subsidiary alliance? इन्होंने क्या किया that they sent British army, British army, they sent to Indian provinces and they said Indian provinces की हमारी आर्मी आपके पास रहेंगी, they will protect you from your neighbors and in return you have to pay us. तो Indian rulers also thought कि okay, actually they were very afraid कि कब उनके neighbor उन्हें attack कर दे. So they said okay, and in return Britishers को क्या मिला? They got money. Their army was being trained under Indian money. And on top of it, they made they made a deal with them that British enemies will be that province's enemy and that province's enemy will be the Britishers enemy. इसका मतलब ये है कि अगर Britishers बोलते हैं हाँ हमें लड़ाई करनी है then they will fight. अगर Britishers बोलते हैं नहीं करने हैं then they will not fight. And this is known as the doctrine of subsidiary alliance. अब you guys must be thinking, and if not you should be thinking, कि इंडियन आर्मी में ऐसा क्या था जो उन्होंने ब्रिटिशर्स आर्मी को ही एम्प्लॉय किया. वाई डिड इन इंडियन सोल्जर्स फाइट और वाई डिड दे अलाउ ब्रिटिशर्स टू कम इन इंडिया एंड फिर दे आर पेइंग ऑल्सो. तो इसके दो रीजन्स है मेनली. देर आर मैनी रीजन्स. चलो आई टेल यू ऑल द रीजन्स. नंबर 1 इज सुपीरियर आर्म्स. सॉरी गाइस. नंबर 1 इज सुपीरियर आर्म्स. The Britishers had much better arms. They had muskets, they had cannons. And Indians did not have so good technology. In fact, they were just imitating what Britishers had. Secondly, the Britishers had better salary, British army. तो ऑफ कोर्स जहाँ सैलरी मिलेगा हम सब वहाँ जाने की कोशिश करेंगे. टाइमली सैलरी, प्लस दे वर डिसिप्लिन्ड. दे हैड फेयर सिलेक्शन on merit based, जबकि इंडिया में देयर वाज कास्ट बेस्ड. सो यू कैन इमेजिन कि अगर आपका कास्ट डाउन है, आप शूद्र से हो, एंड इवन इफ यू कैन बी अ वेरी गुड आर्मी मैन, यू आर नॉट अलाउड. वैसे ब्रिटिशर्स का मेरिट था. ठीक है.
Fourth reason, Britishers had second line leaders. What is second line leaders? Can anyone tell me? They had backup team like Ayr Kute, Arthur Wellesley. Pardon my handwriting, it's a bit bad. Okay, but India had Tipu Sultan, Hyder Ali, Yashwantro Holkar. But the problem with Indian rulers were that they were busy fighting amongst themselves. Okay, but Britishers के ऐसे कुछ नहीं. They all had one motive: united we stand, divided we fall. Then Britishers had a very strong financial backup. Now, how did the Britishers get finance? World trade. Then shareholders in England paid some money. So they were always much ahead than Indian army. Sorry, not India. They were much ahead than Indian army. And of course, lastly, they had national pride. They were not just fighting for their personal interest. They had national pride altogether. They were like, we are British soldiers, हमसे लड़के दिखाओ. And Indian rulers were like, हमारे province में मत आओ, हमारे area में मत आओ. They were busy local. I said you ना, the main reason for British conquest in India was politically weak rulers in India. अगर वो politically weak नहीं होते, अगर वो united होते right from the beginning, Britishers would not be able to capture India. But okay. But अब this is history, so of course we need to learn. So all these reasons like better weapons, discipline, fair selection, money, unity, national pride, ये सब मिलाकर Indian army and rulers were much less. And then British army. Now Britishers fell कि भाई बंगाल बहुत अच्छा दिख रहा है. Do you know ना where is Bengal on Indian map? I hope you all know this much, right? Bengal is here, okay. Bengal is here. Now Britishers saw कि भाई बंगाल बहुत अच्छा दिख रहा है. Now that time Bengal was much bigger. I'll show you. I guess I have it. See, this is whole of Bengal at that time. ठीक है. So now Britishers saw कि this has rich farmlands and Bengal में silk, cotton, rice, indigo, आपका sugar, pepper, saltpeter, sorry, सब यूज़ होता है. Okay. And 60% of all British imports from Asia. Can you imagine? Where is it? From whole Asia, 60%. Whole Asia, 60% is coming from India alone. Going where? To England. So the Britishers saw कि भाई बंगाल बहुत अच्छा जगह है. We can do things and stuffs in Bengal. You'll get to know later what were the things. So they built factories in Bengal. I'll show you the factories. What are the major factories they built? They built Balasore. Where is Balasore? I think it's not shown. Yeah, it's here. Because इस समय तो ये पार्ट भी बंगाल के अंदर आता था. So they built Balasore. They built Hooghly. What else did they build? Bandel, Dhaka, Chinsura. ठीक है, these are the major factories of Britishers in Bengal. Okay, sorry, the whole part of it. Okay. So Britishers started building factories and all. But the main thing is कि Britishers को मिल गया था फरमान. अगर मैं इसको simple language में बताऊँ तो Bengal at that time was ruled by the Mughals. And Mughals कहाँ थे? Delhi में. Okay. Mughals were not at all ruling from here. Mughals were ruling from Delhi. Okay. So अब Mughals ने क्या किया? See, I will change my pen for your better understanding. The Mughal emperor, this is the Mughal emperor. Okay. ठीक है. The Mughal emperor issued a farman. To whom? To the Britishers. What is the farman? I'll tell you in 2 minutes. And the Britishers paid rupees 3,000 per year for this farman. अब फरमान क्या था? And by the way, Bengal was under Mughal rule. So अगर मुग़ल एम्परर कुछ चीज़ कह रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि हम आपको फरमान दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनको 3,000 रुपीज़ दे रहे हैं. So Bengal, who is
ruled by Mughal emperor of course has to listen to it. वो ये नहीं कह सकते कि हम ये फरमान नहीं मानते हैं, because this Mughal emperor is ruling Bengal. So what is this farman actually? The Mughal emperor gave Britishers this farman that they can trade freely without tax. Now what is this tax? क्या है क्या नहीं है, I will tell you later. अभी के लिए you just need to know that the Mughal emperor ruled Bengal. मुग़ल एम्परर का डिसीजंस बंगाल के लिए लागू होते थे. मुग़ल एम्परर इशूड अ फरमान टू ब्रिटिशर्स वेयर दे वर अलाउड टू ट्रेड विदाउट टैक्स. फॉर दिस द ब्रिटिशर्स गेव द मुग़ल ₹3000 पर ईयर. ठीक है, बट द ट्रेड फ्रॉम ट्रेड दे अर्न 50,000 per year. Now you can see the difference. They earned 50,000 per year, but they gave how much? Only 3,000 per year. बाकी का 47,000 उनके पॉकेट में सीधा. So they loved the फरमान. Plus that was free from all the duty taxes. अब आपको क्या लगता है इसमें किसका लॉस हो रहा है? मुग़ल एम्परर प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट बट सम वॉट प्रॉफिट, ओके, क्योंकि उनको 3,000 रुपीज़ आ रहा है ईयरली. Britishers profit, he profit, okay, but the one suffering will be the Nawab and the local sellers. Why? क्योंकि नवाब को टैक्स नहीं मिलेगा, ड्यूटी टैक्स, ठीक है. And local sellers, why? Because since local sellers are paying all the taxes, तो उनका जो प्रोडक्ट प्राइस होगा, सपोज इट इज़ 60 आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, यहाँ 5 रुपीज़ लगा, यहाँ 10 रुपीज़ लगा, लास्ट में इट इज़ 60 रुपीज़ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. बट ब्रिटिशर्स हैव टू पे नो टैक्सेस, दे कैन डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट इन 40 रुपीज़ बिकॉज उनको कहीं टैक्स नहीं देना है. सो दे कैन सेल द प्रोडक्ट इन 40 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट भी है उन्हें. सो दिस वॉज वेरी 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 प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिशर्स. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड कि now we will move on and shift our focus to Bengal. Okay, now we'll talk only about Bengal. So Bengal के 3 rulers थे, 4 actually. I'll write the name. One is Murshid Quli Khan. Write with me, you will remember better. Murshid Quli Khan. Second is Shujauddin. Third is Sarfaraz Khan. And fourth is अलीवर्दी खान. ठीक है, now you need to learn this. Murshid Quli Khan, then Shuajuddin, then Sarfaraz Khan, then अलीवर्दी खान. Okay, now there is a question कि भाई जब ब्रिटिशर्स टैक्स फ्री प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं तो नवाब का ट्रेजरी का लॉस हो रहा है. तो द क्लैश इज़ इनएविटेबल. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि लॉस किसका हो रहा है? नवाब का, बिकॉज नवाब को तो टैक्स नहीं मिल रहा है. एंड हु इज़ हैविंग द प्रॉफिट? ब्रिटिशर्स. तो किसके बीच और किसके बीच में फाइट होना इनएविटेबल है? द नवाब एंड द ब्रिटिशर्स. एंड दिस लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, आई हैव गिवन इनटू अ बैकड्रॉप. लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज टिल नाउ व्हाट वी लर्नड. We learned that Britishers liked Bengal. Mughal emperor issued a farman to the Britishers जिनके बदले they took ₹3,000 per year. फरमान क्या था? To trade freely विदाउट टैक्स. इससे क्या हुआ? नवाब को लॉस हुआ बंगाल में, नवाब्स लॉस इन बंगाल. और सेकंड क्या हुआ? लोकल सेलर्स को लॉस हुआ बिकॉज ब्रिटिशर्स हैड दिस एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज. एंड दिस फाइनली द टसल बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द नवाब led to a battle and that battle is known as the Battle of Plassey. अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है. I hope you all are understanding.
ओके, सो नाउ लाइक एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि बंगाल में ही ऐसा क्या था एंड नॉट समवेयर एल्स. तो आई विल टेल यू दैट बंगाल वॉज दिस बिकॉज ऑफ मेजर फैक्टर्स. पहला चीज़, बंगाल वॉज फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेस ऑफ मराठा. I have a map, I think. Yes. See, this is the Maratha Empire. It is full till Deccan से लेकर यहाँ तक है. But Bengal was mostly free from the Maratha Empire, from the Jats, plus from the foreign invasions. Can you tell me कौन आता था foreign से invade करने? Anyone? It was Nadir Shah and Abdali. Okay. तो बंगाल वॉज फ्री फ्रॉम ऑल दीज रिवोल्ट्स लाइक मराठा एम्पायर से, जाट से, एंड देन रिवोल्ट फ्रॉम अफगान से. सो दिस रीजन नेचुरली फ्लोरिश्ड. सेकेंड रीज़न था यहाँ के फर्टाइल लैंड वॉज फर्टाइल. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे दिस इज़ नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे भरपूर अमाउंट में राइस, शुगर केन, जूट मिलता था. फर्टाइल वाई? बिकॉज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. ओके, तो हार्वेस्ट होता था. पीपल, मोर फूड इज इक्वल्स टू मोर पीपल कुड सर्वाइव. उससे क्या होता था, पॉपुलेशन ग्रोथ होता था. फिर यहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री ग्रोथ भी होता था एज देयर वर फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच कंपनीज ट्रेडिंग, तो जॉब्स भी क्रिएट हो जाता था. ओके, सो दीज वर द रीजन्स वाई बंगाल फ्लोरिश्ड. And other reasons are, many reasons are there, but these were the major reasons. Okay, so ये बस एक मुझे लगा आप लोग को डाउट आ सकता है. Let's get back. ठीक है, these were the rulers of Bengal as I already told you. First was Murshid Quli Khan, फिर शाहजुद्दीन, फिर सरफराज खान, फिर अली वर्दी खान. So this is some facts which you need to just know that Murshid Quli Khan became the Diwan of Bengal and ruled till his death in 1727. He was succeeded by his son-in-law Shuajuddin, who ruled till 1739. After that, for a year, Sarfaraz Khan, an incapable son of Murshid Quli Khan, became the ruler. He was killed by Ali Vardi Khan. And then Ali Vardi Khan till 1756 ruled. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कहानी बताऊंगी अली वर्दी खान का. See, basically what Ali Vardi Khan did was he killed कौन? सरफराज खान. He killed Sarfaraz Khan and Mughal emperor in Delhi. Who was he? Muhammad Shah. Okay, he paid Muhammad Shah. ठीक है, this person was happy with money. वो बोला ठीक है भाई, तुम बन जाओ नवाब. So this is how Ali Vardi Khan became the नवाब. ठीक है, and Ali Vardi Khan जब नवाब बने, then there was a lot of revolt, not revolt, there was a lot of attacks from Maratha Empire. So Ali Vardi Khan was busy preventing these attacks. Now Britishers were very clever. जब उन्होंने ये देखा कि अली वर्दी खान इज़ बिजी विथ मराठा एम्पायर, तो उन्होंने बोला कि सर, कैन वी प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर फोर्ट्स. यू रिमेंबर दे मेड अ फोर्ट एट हुगली. वेयर इज इट? द ब्रिटिशर्स हैड मेड अ फोर्ट एट हुगली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो इनके फोर्ट थे जैसे बैलासोर, ढाका, दीज वर टेम्प्रेरी. ठीक है, फोर्ट्स थे भी नहीं है, ये बस थे कि हाँ ठीक है दीज वर टेम्प्रेरी. बट यहाँ पे वो लोग, उन्होंने प्रॉपर फोर्ट बनाया, रूम्स बनाया, पीपल लेटर शिफ्टेड हियर. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स बोले कि सर आप ऐसे भी देख लो कितना रिवोल्ट हो, कितना, वेयर इज इट, या सर, एज यू कैन सी हाउ मच द मराठास आर attacking us, so we need to build a fort. We already have a fort, we need to protect our fort. तो उन्होंने अली वर्दी खान ने बोला ठीक है भाई, क्या करना है. सो दे सेड कि हम ऐसे अपने फोर्ट के सामने बना लेते हैं कि अगर कोई आए लड़ाई करने, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो द ब्रिटिशर्स हैड, वो वेरी क्लेवर, दे न्यू हाउ टू डू, व्हाट टू डू. तो अली वर्दी खान समहाउ अलाउड देम. ठीक है, बट अली वर्दी खान प्रोटेक्टेड हिज प्रोविंस. द मराठास कुड नॉट टेक ओवर. अली वर्दी खान लेटर रियलाइज्ड कि ब्रिटिशर्स, जो कर्नाटिक रीजन है साउथ में, ब्रिटिशर्स देयर वर टेकिंग अप पावर.
अलीवर्दी खान ने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दैट इज़ द इंग्लिशमैन, ठीक है, उनका लड़ाई हुआ, इंग्लिशमैन दैट इज़ द ब्रिटिशर्स जीत गए एंड नाउ दे आर रूलिंग. सो अलीवर्दी खान अंडरस्टूड कि भाई इन लोगों को यहाँ से निकालना अब ज़रूरी हो गया है. ही अंडरस्टूड बट बिफोर ही कुड एक्ट अपॉन ही डाइड. ओके, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड देन हिज 20-year-old grandson, कौन, सिराज उद-दिन दौला, ओके, नॉट शुजाउद्दीन, सिराज उद-दौला, ठीक है. व्हाट ही डिड, ही बिकेम द नवाब, ठीक है. अब नाउ ये बंदा था 20 साल का, ठीक है. सो व्हाट ही वाज लाइक 20 years ही हैड दिस वार्म ब्लड कि भाई कत्ल कर देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे एंड एवरीथिंग. तो उसके बहुत सारे एनिमीज़ थे, ठीक है. फर्स्ट हिज एनिमी वाज शौकत जंग, ठीक है. ही वाज द नवाब ऑफ पूर्णिया. सेकेंड हिज एनिमी वाज घसीती बेगम. शी वॉज अ रिच विडो हु डिड नॉट हैव अ चाइल्ड, ठीक है. थर्ड वॉज मीर जाफ़र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ही सीक्रेटली वॉन्टेड टू बिकम नवाब. फिर वॉज लाइक पावरफुल मैन इन हिज कोर्ट्स, ठीक है. नाम आपके बुक में मिल जाएगा, जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ, राय बल्लभ एंड ऑल. एंड देन फाइनली वर द इंग्लिश ट्रेडर्स, ठीक है, हु वर इनसिक्योर, who were making शिराज इनसिक्योर, ठीक है. अब भाई यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग दैट इन्होंने इतने सारे दुश्मन कैसे बना लिए, ठीक है. वाई सो मेनी पीपल आर एक्चुअली नॉट लाइकिंग हिम, दिस आई विल टेल यू इन सम टाइम, ठीक है. बट वॉट डिड दिस पर्सन डू वॉज ही डिफीटेड एंड किल्ड शुगात जंग. इन्होंने इसको तो निकाल दिया लाइन से, ही डिफीटेड हिम, ठीक है. What he did from घसीती बेगम, he took away all the treasures from this person. ये भी चला गया. She was very rich but and she wanted कि पैसों के दम पे ये रूल करे, but the person took all the treasures, ठीक है. फिर कौन बच गया, एक मीर जाफ़र, but he was a commander so he removed मीर जाफ़र and made मीर मदन, ठीक है, मीर मदन his commander, ठीक है, आर्मी में. अब क्या हुआ, ही अपॉइंटेड मोहनलाल अ कश्मीरी ऑफिसर, ठीक है. ही अपॉइंटेड मोहनलाल अ कश्मीरी ऑफिसर टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने खुद के लोगों को रखा ही नहीं बिकॉज अपने ही दगाबाज निकलते हैं, ठीक है. एंड लास्टली व्हाट ही डिड was he knew that the Britishers could today or tomorrow rule or try to rule. So he was smart enough. ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है what has happened? Let me just give you a brief thing. आप एक नया पेज ले लो, ठीक है. पहला he had internal family enemies, ठीक है, इंटरनल फैमिली एनिमीज़. इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा शौकत जंग बिकॉज ही वॉज नवाब ऑफ पूर्णिया. इसमें आ जाएगी घसीती बेगम, शी वॉज़ वेरी रिच एंड पैसों के दम पे वो बनना चाहती थी नवाब, ठीक है, रूलर. देन वॉज मीर जाफ़र, ही वॉज हिज ओन ब्रदर इन लॉ, ठीक है, और आर्मी में भी काम करता था. सो इसका इंटरनल फैमिली पॉलिटिक्स भी बहुत था. फिर था इनके कोर्ट पॉलिटिक्स. नाउ दिस पर्सन इज़ ऑफ 20 years. तो कोर्ट पॉलिटिक्स इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ यंग, नॉट यंग, अ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड मैच्योर पीपल, ठीक है. जैसे कि जगत सेठ हो गए, ओमी चंद हो गए, राय दुर्लभ हो गए, राय बल्लभ हो गए, ठीक है. दीज पीपल सजेस्टेड मे बी दिस पर्सन समथिंग, और ये उनका बात नहीं मानते थे. मे बी देयर सेंटिमेंट्स गॉट हर्ट, मे बी दे थॉट ये 20 साल का लड़का हमें रूल करेगा, ठीक है. प्लस हिज पर्सनैलिटी, he was only 20 years old, his blood was, ठीक है. so what he did was he made enemies very quickly, क्योंकि ये जगह पल भर में डिसीजन लिया, चेंज कर लिया. so his enemies were more than his friends, ठीक है. इंग्लिश से थ्रेट इनको था ही बिकॉज द इंग्लिश did not want the Indians to become very strong and the English were already building forts. And of course he was the ruler of Bengal, so Bengal was also very turbulent. What do you mean by turbulent? Everyone wanted to be
कंट्रोल बंगाल, ठीक है, एवरीवन वांटेड टू कंट्रोल बंगाल. सो द पोजीशन इन विच दिस पर्सन वाज रूलिंग, मतलब मैनी पीपल वांटेड टू रूल दैट प्लेस, ठीक है. इन शॉर्ट ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है. नाउ वील स्टडी द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है. नाउ बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों, ठीक है, पहले तो वो समझ लेते हैं. सो नवाब कौन था बंगाल का उस समय? सिराज उद दौला, ठीक है. क्या ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम. नाउ द ब्रिटिशर्स, आप लोगों को याद है ब्रिटिशर्स को रॉयल फरमान मिला था. दे स्टार्टेड मिस यूजिंग इट. हाउ सर, हाउ मैम, हाउ डिड दे स्टार्ट मिस यूजिंग इट? आपको याद है इन्होंने कैलकाटा में एक फोर्ट बनाया था. दे फोर्टिफाइड इट, मतलब किला को चारों तरफ से घेर दिया विदाउट एनी परमिशन, ठीक है. सेकेंड, दे गेव असाइलम टू कृष्णा दास. कृष्णा दास कौन था? ही हैड टुक ऑल, नॉट ऑल, ही हैड स्टोलन ट्रेजर्स, ठीक है, फ्रॉम द नवाब अर्लियर, ठीक है. और वो लोग पर्सनल ट्रेड भी करने लगे. अब आई टेल यू कि व्हाट हैपेंड, ठीक है. नाउ आई एक्सप्लेन यू. जैसे सिराजुद्दौला वॉज द नवाब एंड ब्रिटिशर्स वर मिसयूजिंग इट्स फरमान. जैसे वो पर्सनल ट्रेड करते. पर्सनल ट्रेड कैसे करते? जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, सिल्क लेना है आपको, सिल्क पे आपका टैक्स है 100 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ₹100. आपने बोला भाई मेरे पास तो फरमान है, आप मेरे को 100 माइनस करके दो. तो बोला ठीक है, हम कंपनी के लोग हैं, तो 600 माइनस 100 500, ठीक है. सो दिस वॉज अ डील, दिस फरमान वॉज अ डील बिटवीन द मुगल एम्परर, ठीक है, एंड whom द ब्रिटिशर्स, ठीक है. फॉर वॉट? फॉर कंपनी. इन्होंने प्राइवेटली तो नहीं बोला था कि कंपनी का हर एक बंदा ये चीज़ कर सकता है. हर एक बंदा ये चीज़ कर सकता है, बट दे कैन डू इट फॉर द कंपनी. द डील इज़ बिटवीन द कंपनी, ठीक है. अब ये लोग क्या किए कि दे लाइक द सिल्क. उन्हें लगा वाह मेरी बीवी को अच्छा लगेगा, मेरी बहन को अच्छा लगेगा, मैं क्या करता हूँ 2 पीस ले लेता हूँ और 200 रुपीज़ माइनस कर दो. इन्होंने जाके फिर वो अपने को गिफ्ट कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, ठीक है. पहला चीज़. दूसरा चीज़, अब जैसे कोई इंडियन है, ही इज़ बाइंग सिल्क, ठीक है, उसको तो 100 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. नाउ दीज ब्रिटिशर्स सेड कि भाई तुम ये लो फरमान, आई एम सेलिंग यू द फरमान, आप मेरे को 1000 दे दो. दीज आर जस्ट नंबर्स रैंडम, ओके, दीज आर नॉट रियल. इनको इंडियन से भी पैसे मिल रहे हैं 1000. उस इंडियन का भी अच्छा है कि उसको 100 रुपीज़ टैक्स नहीं देना पड़ रहा है. लॉस किसका है? पुअर सेलर्स, आर्टिसंस, उनका लॉस हो रहा है. एंड किसका लॉस हो रहा है? नवाब का लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको पैसे नहीं आ रहे हैं, ना टैक्स से आ रहे हैं, ना इंडियंस पैसे दे रहे हैं. प्लस कृष्णा दास वॉज समबडी हु हैड स्टोलन ट्रेजर्स. किससे? नवाब से, नवाब के ट्रेजरी से. तो लॉ एंड ऑर्डर को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये असाइलम दे रहा है अल्टीमेटली इसको. एंड प्लस उनका एक फोर्ट था, वो बिना परमिशन दिए, भाई तुम ट्रेड करने आए हो, तुम ट्रेड करो, भाई तुम बिना परमिशन के उसको फोर्टिफाई कैसे कर सकते हो? दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग इट. अब सिराजुद्दौला वॉज क्लेवर. ही थॉट कि आई हैव टू अटैक द ब्रिटिशर्स. सो सिराजुद्दौला अटैक्ड द फोर्ट द ब्रिटिशर्स हैड मेड, एंड दिस इज़ नोन एज द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा. यहाँ पे अराउंड 146 इंग्लिश मैन were kept in a very small room and 90% died. Okay, but these numbers many historians do not believe or they might have been exaggerated, ठीक है. अब भाई ब्रिटिशर्स को पता चल गया ये चीज़ कि 45 की फोर्ट में ऐसा चीज़ें हुआ है. देन दे थॉट कि भाई अब मैटर हो गया है बड़ा, अब बुलाते हैं अपने बॉस को. हु इज़ द बॉस? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है. ही वॉज अ वेरी 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 डिप्लोमेटिक पर्सन. मतलब रॉबर्ट क्लाइव वॉज एक्चुअली वेरी डिप्लोमेटिक एंड ही हैड अ वेरी शार्प माइंड.
ठीक है। नाउ व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू? ही केम विद एन आर्मी, ठीक है। क्लाइव डिडंट जस्ट फाइट, ठीक है, ही मेड अ सीक्रेट डील विद द ट्रेटर्स इनसाइड नवाब्स कैंप। अब भाई आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आया, मैं बता रही हूँ आपको। जो नवाब था, ठीक है, उनके अंदर मीर जाफ़र आपको याद है, जिन्होंने उसको निकाल दिया था कमांडर को, याद है आपको? आपको राय दुर्लभ याद है, ओमी चंद याद है, जगत सेठ याद है? दीज वो हूँ, ये इनके कोर्ट के ही पार्ट थे। दीज पीपल डिड नॉट लाइक होम सिराज उद दौला। व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू? इनके पास आए, बोले भाई हम टीम अप कर लेते हैं एंड देन वील फाइट हिम। तो इवन विदाउट देयर ओन आर्मी द ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हैड सिराज उद दौला's 50% आर्मी। बैटल तो उन्होंने ऐसे ही जीत गया था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? ऑफ कोर्स द ब्रिटिशर्स वन, बिकॉज इनके आर्मी मैन ज़्यादा थे, सिराज उद दौला के खुद के लोग इनको धोखा दे दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि द ब्रिटिशर्स वन, मीर जाफ़र को वो बोले कि भाई, मीर जाफ़र को बोले तुम नवाब बन जाओ। द ब्रिटिशर्स कुड हैड टेकन, मतलब द ब्रिटिशर्स कुड हैव बिकम नवाब देन ऑल्सो, बट उन्हें लगा कि नहीं भाई हम ट्रेड करने आए हैं, हम ट्रेड पे फोकस करते हैं। प्लस उनके लिए मुश्किल हो जाता बिकॉज दे डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड ऑफ कोर्स द पीपल वुड हैव क्वेश्चन कि वाई आर वी बीइंग रूल्ड बाय समबडी हु इज़ नॉट इवन इंडियन। सो दे वर लाइक मीर जाफ़र को सामने रखते हैं और हम पीछे से रूल करेंगे, लाइक द रियल पावर, ठीक है। दे स्टार्टेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बट फेस था मीर जाफ़र का, ठीक है। मीरा बोल दिस।